अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आपको पता है कि अब्दुल्ला ताहिर केस के ऊपर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। नित नई चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं, मंजर आम पे आ रही हैं। पुलिस और अदारे इतने मुतहरक हैं कि उनकी जो है ना सर तोड़ कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से जो है ना ज़मान घुग्गी भट्ट को जो है ना पाकिस्तान ले आएँ। अब आपको पता है कि जब बंदा ज़ाहिर है किसी के बारे में बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है वाक़या को, हालात वाक़यात को जांच रहा होता है, तो कई ऐसी नई चीज़ें जो है ना सामने आ जाती हैं कि जिनका उस केस से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जिस करैक्टर को मनफी बना के पेश कर रहे होते हैं ना, उसकी स्टोरी के साथ रिलेटेड बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें होती हैं। आपको मैं एक ना धमकी भरा जो है ना पैगाम सुनाने लगा हूँ। इसमें घुग्गी भट्ट जो है ना वो मेरा नाम ले रहे हैं, और वो क्यों मेरा नाम ले रहे हैं और उस बंदे को कह रहे हैं कि शाहिद चौधरी को कॉल पे लूँ। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुने ना, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। हेलो। सलाम अलैकुम तकीर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है तकीर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहचानिया नहीं? नहीं मैं नहीं जी पछानिया। घुग्गी भट्ट बोलदा पिया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई साहब। ते कैसी तबीयत है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कूल रिकॉर्डिंग ते ला लो। हाँ जी। कूल रिकॉर्डिंग ते मैं के ला लो, मम्मी इधरों लाया जाओ। अच्छा नहीं मैं सुता नहीं, साइलेंट ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਲ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾइलेंट ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ। मैं के रिकॉर्डिंग ते ला ला फोन। जी ठीक हो गया, सब ठीक है। मेरी गल च कोई फेर ना होए। ठीक है। तो आई सी कॉल अच्छा किसी बंदे दी, ठीक है। ते ओ कह रहा सी कि नारोवाल च बंदा वा ते ओनू कहा तू के तेरे वालिद नू कत्ल कर देने ते फिर तू लिख देगा। अच्छा तो अब बंदा अपना नाम नहीं देन दिया दा जनाब, ते बंदा डरदा पिया वा। अच्छा मैं ते अच्छी गल किसी ने नहीं कीती भी, अच्छा। ते क्यों तखीर में तेरे याद होए ना कीती होए? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੰਨੋ ਉਹ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ CCD ਵਾਲੇ। ਹੈਲੋ। हाँ जी ले गए संदे हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਵਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। आ खोलिया जी। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਉਹ। किधर खड़े तेनू? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 5 ते 7 च बड़ा फर्क है। 5 ते 7 13 जना से 13 दिन बाद। ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5-7 दिन च बड़ा फर्क हुंदा ना। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹਾਈ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। गल सुन, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तरीक याद है तेरी, तू गल सुना तू। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ। ठीक हो गया। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਉਹ ਜ਼ਫਰਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ। फिर
ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਪਾਸ਼ੇ ਹੁਣੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਕੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਿਆ ਵਜਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜੁਰਤੇ ਤਵੇ ਸ਼ਾਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਰਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਸਲੀਓ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨਸਲੇ ਹੋ ਓਏ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨਸਲੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਭੈਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ हाई साहब मेरी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा और आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे हाजी ज़मान कुगी भट्ट जो है ना किसी को धमकी दे रहा है। सबसे पहली बात आपको मैं ये बतानी चाहता हूँ कि आप ये देखें कि हाजी ज़मान कुगी भट्ट जो है ना बेशक ये इश्तिहारी है, इसने सबसे पहले उस बंदे को ये कहा कि तुम रिकॉर्डिंग लगा लो ताकि कल को ये कोई ऐसी बात खुद से जो है ना थोप ना सके या प्लांटेड या इल्ज़ाम जो है ना लगा सके, ताकि जो भी बात हो रिकॉर्डिंग में वो चीज़ जो है ना सेफ हो जाए। अब आप देखें कि सुनने में तो बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग है और हमने बीप्स भी लगाई हैं। हाजी साहब जो है ज़ाहिर है गालियाँ भी निकाल रहे हैं, गुस्से में हैं, इश्तियाल में हैं। अब आप ये देखें किसी वजह क्या होगी, वजह को बंदा जानता है ना कि बेशक वो इश्तिहारी हैं, उनके ऊपर अपने भाई का भी कत्ल है, 7 और 3 नामालूम अफराद का कत्ल है, बेशुमार और मर्डर केसेस हैं। इसके बावजूद जो है ना रियलिटी आप तक पहुंचनी चाहिए ताकि अदारे जो है ना जब भी तफ्तीश का जो है ये जायज़ा लें या तफ्तीश करें तो उनके सामने ये हक़ाइक़ जो है ना होने ज़रूरी हैं। असल में ये जो बंदा है ना जिससे बात की जा रही है, ये बंदा बकौल इसके ख़ुद या बता रहा है कि CCD इसको पकड़ लेती है और ये वहाँ पर स्टेटमेंट देता है कि जी मुझे हाजी ज़मान कुगी भट्ट जो है ना ये धमकियाँ देते हैं। ऑडियो में ये बात तस्लीम कर रहा है कि जी मैंने CCD को बताया कोई धमकियों का सिलसिला भी जो है ना वो जारी था। अब ये धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं? या तो ये किसी केस का मुद्दई होना चाहिए या ये शहादती होना चाहिए या इसके हाथ में ना कोई सुलह होनी चाहिए जो ये नहीं होने दे रहा। इन तीनों चीज़ों का जो है ना इस धमकी मेज़ जो है ना कॉल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जो बंदा है ना, जब मैंने आपको बताया कि ये ऑडियो मेरे तक पहुंची, ये बड़ी वायरल है और मैंने आज से 4 दिन जो ब्रॉड अपने यानी ब्रॉड के ऊपर लाइव जो है ना मैंने लोगों को ये सुनाई भी थी और मुझे पता था कि कोई बंदा भी जो है ना इसको ऑन नहीं कर सकता। किसी की तशरीफ़ ने इस ऑडियो को उठाने का यानी इसको लगाने का या अपलोड करने का भार नहीं उठाना। मैंने स्पोक्स पर्सन जो हाजी ज़मान कुगी का जिनसे पहले मैंने रब्ता किया और अब्दुल्ला ताहिर केस के बारे में सारे हक़ाइक़ पब्लिक किए, उनसे मैंने रब्ता किया तो मुझे उन्होंने ये मैसेज जो आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इस धमकी के यानी कि जवाब में या इसके मौक़िफ़ में जो है ना मुझे इन्होंने ये मैसेज भेजा है। मैंने जो उन्होंने लिखा है पढ़ लें। इसके बाद स्पोक्स पर्सन जो है ना मुझे कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि 30 साल पहले कोई जगह थी, वो इस शख्स से जिसको ये धमकी दी जा रही है, यानी ये महसूस हो रहा है कि धमकी दी जा रही है, लेकिन ये धमकी नहीं, ये कुछ और है। हालात आपके सामने होने चाहिए, फ़ैसला आप लोगों ने करना है, मैं कोई जज तो हूँ नहीं। हाजी ज़मान कुगी जो है ना उन्होंने 30 साल पहले इसको किसी जगह के पैसे दे दिए थे रजिस्ट्री के लिए, सारा कुछ जो उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी थी। लेकिन ये बंदा जो है ना इसने कहा था केस हमारा चल रहा है, आपने हमें पेमेंट। हाजी कुगी जो है ना वो अपने एतमाद और ताकत के बलबूते पर इसी तरह करता है, यानी पैसे वो पहले दे देता है। पैसे किसने खाने हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में उसके, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है।
तो इसी अबहाम में या इसी ताकत के नशे में वो इन्होंने सारी पेमेंट जो उस वक़्त का रेट था उस बंदे को दे दिए थे। अब उसके बाद जो है ना, ये बंदा यानी कहता है कि ये हमारे कुछ सारे जो ख़ानदान के हैं कुछ साइन अंगूठे होने हैं, रजिस्ट्री होने, ये लटकाता आ रहा था। हाजी कुगी साहब उस जगह को ज़ाहिर है इस्तेमाल करेंगे, इतनी डिटेल से मेरी बात तो नहीं हुई, वो भी लागर्जी में जो है ना भूल रहे हैं। भाई का कत्ल पड़ गया, वो 2 4 5 साल से सारे मामला चल रहे थे, इस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो सकी और वो इसी अतमाद में थे कि मैं जब कहूँगा रजिस्ट्री हो जाएगी। अब क्या होता है कि उनके ऊपर ये अब्दुल्ला ताहिर वाला केस पड़ गया, भाई का मर्डर पड़ गया, तो उन्होंने जब देखा या जब सोचा होगा कि मेरी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई तो ये मैं करवा लूँ, इस बंदे को कॉल की तो इसने जो है ना CCD से कांटेक्ट कर लिया। उसने इनकी जो है ना पहले दी गई धमकी, जिसमें ये खुद तस्लीम यानी हाजी साहब इसको कह रहे हैं, हाजी कुगी इसको कह रहे हैं कि भाई तुमने उनको कहा नहीं कि मेरे प्यो नूं यानी कि मेरे प्यो नूं मार दो तो मैं बयान दे दा। ये जो बात है ना, पहले कोई ऑडियो जो थी वो इसने CCD को दे दी होगी, जिसमें हाजी कुगी बकौल इस बंदे के इसको कह रहे हैं कि जब तेरा प्यो नहीं मानता तो तेरे प्यो नूं मार देना है ना, तो फिर तू बयान दे दी, तू जाकर उत्थे जो अदालत कोर्ट कह दें कि मैं रजिस्ट्री कर दी थी क्योंकि नॉल नाल तू है। इस तरह की कोई धमकी पहले दी गई होगी या कुछ ऐसा सीन जो है ना चला होगा। उसके बाद जो है ना ज़ाहिर उनको पता लग जाता है कि इसने जाकर CCD को जो है ख़बर दे दी है कि इश्तिहारी मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, मुझे धमकियाँ दे रहा है। तो उन्होंने जो है ना उस धमकी की पादाश में इसको ये कॉल की है। और मेरा नाम क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि मैंने स्पोक्स पर्सन को ये कहा था, जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने किसी जगह से ये रिकॉर्डिंग सुन ली तो मैंने आवाज़ पहचान ली, तो मैंने कुगी भट्ट से रब्ता किया कि आपकी धमकी की वीडियो जो है ना ये वायरल हो रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, धमकी क्यों दी आपने। तो उन्होंने मुझे ये बात जो कही थी ना मैंने आपके सामने रख दी है। तो मैंने जो है ना ये रिकॉर्डिंग किसी और बंदे से ली थी या सुनी थी। हाजी कुगी ने ये समझा कि ये रिकॉर्डिंग जो मुझे इस बंदे ने दिया, हालांकि उस बंदे को मैं जानता भी नहीं। बाद में मेरा इस बंदे से कांटेक्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं नहीं जानता, ये रिकॉर्डिंग इसने मुझे नहीं दी थी, ये मैंने किसी और ज़राए से ले ली थी और ज़राए अपने कोई भी नहीं बताता है। हाजी कुगी ने जो है ना इस चक्कर में आगे जो है ना इसको धमकी दी। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर जो है ना हालात कुछ जिस तरह के बने हुए हैं, एक बंदा कोई भी जिसके ऊपर मुकदमा तो होना, लोग फिर उसका नाम बदनाम करने के लिए मज़ीद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अगर ये पैसे इस शख्स ने ले लिए, मैं 30 साल पहले जो भी रेट था इसको आप छोड़ दें, अगर जगह उसको 10 रुपये की तो 10 रुपये का रेट हो गया, पैसे पूरे मिल गए, तो इसको रजिस्ट्री कर देनी चाहिए थी। अब ये बंदा रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा, तो क्या ये बंदा गुनाहगार नहीं है, ये गलत नहीं है, ये जुर्म नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना मंजरेआम पे आनी चाहिए। और रही बात अब्दुल्ला ताहिर केस की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो है वो लड़की टिकटॉकर वो भी यानी फिट हो गई है, उसका भी जुर्म साबित हो गया है। उसका असगर जो उनका गार्ड था, जो उनका था ड्राइवर, उसके साथ राब्ते जो है वो सारे सामने आ गए हैं। इसके अलावा जो लड़का आपको बताया मैंने गुजरांवाला का जो है अरसलान सिंधु, इसके पीछे जो है ना पुलिस चढ़ी हुई है, अनकरीब इसको काबू कर रहेगी। मज़ीद जो है 7 गिरफ्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं। अब्दुल्ला ताहिर केस जो है ना, इसमें उनके बेटे का बयान जो है ना, अब्दुल्ला ताहिर के बेटे का बयान आया मंजरेआम पर, बड़ी खलबली मची है, लोग बड़ी हमदर्दी जता रहे हैं, बिल्कुल जतानी भी चाहिए। एक मासूम बच्चा अपने वालिद के कत्ल के लिए जो फरियाद कर रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि हम किसी जो है ना बेगुनाह आदमी को जो है ना सज़ा नहीं करवानी चाहते। अदारों को जो है ना इस केस की तफ्तीश मुनसफाना तरीके से करनी चाहिए। हसनैन हैदर शाह DSP CCD बड़े दबंग ऑफिसर हैं, बड़े मंजे हुए ऑफिसर हैं, और बड़ी बड़ी तफ्तीशें सारी जो है ना उनके पास जाती हैं। वो ज़बरदस्त, वो स्पेशल यानी बड़े, उनको ये बड़े बड़े टास्क मिले और उन्होंने अचीव किए हैं और उन्होंने बड़े बेहतर नताइज दिए हैं। तो उम्मीद है कि 10 से 12 दिन के अंदर जो है ना मज़ीद सारे मुलजमान को पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। जो ही कोई और हालात सामने आए मैं आपके सामने रख दूँगा। फ़िलहाल ये धमकी की वीडियो जो है ना पुलिस और CCD में घूम रही है। मेरे पास चूँकि 2 तरफ़ा मौक़िफ़ सामने आ गया, तो मैंने जो हालात थे आपके सामने रख दिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आप इस धमकी या इस कॉल के बारे में कोई मालूमात रखते हैं, या ये जो करैक्टर बातें कर रहा था इसके बारे में जानते हैं, या आपको क्या लग रहा है कि ये धमकी है या कोई असूल परस्ती के रंग में कोई बंदा कॉल करके जो है अपना मैसेज अगले को पास कर रहा है। कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।